Good morning, my dear students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IITM University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. आप घर पर होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे और हम आशा करते हैं आप अपने से बड़ों का ज़रूर ख्याल रख रहे हैं और ज़रूर ख्याल रखें उनका। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर सब्जेक्ट MSc agronomy of major field crop kharif season. Okay students, so let's start our topic about cultivation of urd bean crop part 4. Okay, so I will introduce all cultivation practices part by part. Students, आपको बताना चाहूँ ये कल्टीवेशन ऑफ उर्द बीन क्रॉप पार्ट बाई पार्ट लेके आए, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो कोई 3 या कोई 4 पार्ट में लेकर आता हूँ जैसे आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, एंड आई विल इंट्रोड्यूस ऑल कंटेंट वन बाई वन। एंड फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन, सेकंड हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज, एंड यील्ड एंड आउटलाइंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर द स्टार्टिंग टॉपिक आई वांट टू टेलिंग यू अबाउट सम पॉइंट्स। आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उर्द बीन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, उर्द बीन विग्ना मुंगो, इसका बॉटनिकल नेम विग्ना मुंगो है। तो विग्ना मुंगो इज एन एनुअल एंड वेडली ग्रोन इम्पोर्टेंट पल्सेस क्रॉप आफ्टर चिपकी and pigeon pea and moongbean. Okay, so student, this crop grow during kharif and rabi summer season in the different part of countries. It is also referred as black gram, mash dal, kalai, black lentil, moong bean. India is considered as the primary center of region and Central Asia as the secondary center of origin of urd bean. Okay, students, urd bean is considered to have been domesticated in India from its wide ancestral form and the center of genetic diversity is India. So students, it show both rest and carrying growth habit. The area of traditional cultivation of urd bean is confined to the South Asia and adequate region of India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and Myanmar. So students, mung bean are grow widely for use a human food as a dry beans, but can be used as a green manual crop and as a forage for livestock. This is the diversity in their use of urd bean. So students, add the much needed to the cereal based cropping system. It is also contained carbohydrate, iron, calcium, phosphorus, magnesium, zinc, sodium, and vitamin. It is consumed as dal and food products such as fried sanke dessert in India. South Asia, it is also used for making for vada, idli, sweet dishes, etc. So this is can be grow year round at home commercially in different part of the country, this crop. So student, this crop can be used for both seed and forage since it is produce a large amount of biomass and then recover after grazing to yield abundant seed. The seed for urd bean can also be used in broilies, wheats, and livestock feed and non-traditional seeds. So students, दिस इज इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके नॉलेज के लिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक ग्राम। स्टूडेंट्स, हम उर्द बीन को ब्लैक ग्राम के नाम से भी बोलते हैं, हम इसे ब्लैक ग्राम भी बोल सकते हैं। तो बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम या उर्द बीन, ओके, क्या है? विग्ना मुंगो। ओरिजिन क्या है? इंडिया। इस तरह का प्लांट दिखता है आपको, जब प्लांट होता है तो इस तरह का दिखता है। फली जब उसमें होती हैं तो इस तरह की दिखती हैं, और जब इसमें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसर होने के बाद निकलता है तो इस तरह दिखता है आपको। ठीक है, ओके। सो दिस इज नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट कंटेंट प्लांट प्रोटेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्लाइड हमारी प्लांट प्रोटेक्शन। ओके, सो
Students, there are several important diseases of woodbine, yellow mosaic virus, powdery mildew, leaf blight, etc. So first हमारी डिजीज़ है येलो मोज़ेक वायरस सिम्टम। स्टूडेंट्स, ये दिखने में फिगर है, एक्चुअली में येलो मीन्स होता है पीला। ये इस पर ये जो लीफ है पूरा प्लांट हमारा येलो हो जाता है और उसमें मतलब पूरा मतलब इससे लाइनिंग सी हो जाती है और पूरा ये पीला हो जाता है। इसे हम मतलब डॉट का कंडीशन में ये जाने लगता है। स्टूडेंट्स, हम इसमें डिजीज़ है कि कौन कौन से इसमें देखते हैं, कैसा दिखता है, कि कैसे सिम्टम होते हैं स्टूडेंट, फिर इसके कंट्रोल बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द मूंगवीन येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, MB मीन्स होता है मूंगवीन येलो मोज़ेक वायरस। ओके, बिलोंगिंग द गेमिनी ग्रुप ऑफ द viruses which is transmitted by the white fly. The tender leaves show yellow mosaic spot which increases with the time leading to complete yellowing. Students, yellowing lead to less flowering and pods development, early infection after leads of death of plants. So this is control students, कैसे इसका करेंगे आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, डिजीज प्लान टू शुड बी राउड आउट ऑफ द प्रिवेंट फ्यूचर स्प्रेड ऑफ द डिजीज। सो सेकंड है हमारा कौन कौन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ये मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो के थ्रू आपको PPT पूरे नोट्स आपको इसमें भी LMS पे अपलोड में कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। इससे मैं कई सारे क्वेश्चन ही फ़ोटो आपसे करूँगा जब मैं आपका वेबिनार लूँगा इस टॉपिक का। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाइट फ्लाई बेमेसिया स्पीसीज इन्फेस्टेशन स्प्रे विद द तनाजोफेस 40 EC एट द रेट 2.0 ml पर लीटर और मेलाथियन 50 EC एट द रेट 2.0 ml पर लीटर और ऑक्सीडिमेटोइन मिथाइल 25 EC एट द रेट 0.0 ml per liter at 10 से 15 days interval and required. So students, grow tolerant resistant variety like that is IPU for 94 and उत्तरा शेखर KU 3309 उज्ज्वला एंड अदर कई सारी हमारी जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट दीजिए पॉडी मिल्डी सिम्टम्स। ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट है इस पर क्या मतलब वाइट से स्पॉट से आ जाते हैं, तो पॉडी मिल्ड मीन्स वाइट पाउडर जैसा होता है, वो झरने लगता है। ठीक है ना, तो उससे वाइट से स्पॉट जाते हैं। आइए देखते हैं इसके कैसे सिम्टम ये देखते हैं और इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, powdery mildew symptoms. Okay, the powdery mildew system, the disease appear on all the part of plants above soil surface. Disease initiates the faint dark spot. Okay, ये dark spot बन जाते हैं, ठीक है, which develop into small white body spots. वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ओके, coalescing to form white powdery coating on leaves, okay, stem and pods. Okay, so at the advanced stage the color of the powdery mass turns dirty white. Okay, so student, the disease induces forced maturity of the infested plant causing heavy yield losses and its intensity increases in stress condition. ओके, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे आइए हम जो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल कैसे करें, एडोप्टिव क्लियर कल्टिवेटेड बाय द डिस्ट्रॉइंग डिजर्ट प्लांट रिफर्स रिफ्यूज एंड डिलेंट सोइंग टू मूंगवीन एंड उर्दवीन विद द वाइड स्पेसिंग considerably reduce the disease severity. Students, for resistant variety as per the recommendation for local agriculture 30s उर्दवीन, ठीक है, एंड LVJ 648 से 17 प्रभा IPU 0243 AKU 59 ETC. Okay, so students, spray with the NSK. Okay, so 50 gram liter of water on neem oil of disease appearances, spray with the Equatis leaf extra 10% in the
initiation of the disease, and third and 10 days later also in necessary. And fifth, spray with water soluble sulfur 80 wp at the rate 4 kg per liter, or carbendazim 50 wp at the rate per gram per liter. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटेंट हमारा जैसे लीफ ब्लाइट सिम्टम. ओके, ये कौन सा है? लीफ ब्लाइट सिम्टम. स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जो लीफ पे क्या है ना, ये स्पॉट हो जाते हैं. ब्लाइट में तो सूखा सा पड़ने लगता है किनारे से और उस पर छेद हो जाते हैं. ठीक है, ये मतलब कहने को ब्राउन सा हल्का होने लगता है. आइए देखते हैं कैसा दिखता है और उसका कंट्रोल कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट, लीफ ब्लाइट इन प्री इमरजेंस स्टेज इन द फंगस कॉज सीड रूट एंड मोर्टली ऑफ germinating seedling. In spot emergent state, seedling blight disease appears due to soil or seed-borne infection. Student, the fungus attack the stem at round level, foraging locally dark brown patches, which coalesces and increases the stem of the pathogen in most favorable at the temperature of 30 degrees Celsius and 50% moisture. सो स्टूडेंट्स को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया इस तरह का लीफ पत्ती में छेद हो जाते हैं और साइड से ब्राउन सा हो जाता है, इसमें स्पॉट से दिखाने लगते हैं. ठीक है ना, इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? बेसल एप्लीकेशन ऑफ जिंक सल्फेट एट द रेट 25 kg पर हेक्टेयर, और नीम केक. ओके, आपने नीम के मोस्टली सुना होगा. नीम केक एट द रेट 150 kg पर हेक्टेयर, और सॉइल एप्लीकेशन पी फ्लोरेंसेस ऑफ और एट द रेट 2.5 kg पर हेक्टेयर प्लस 50 kg of will decomposed FYM, full form FYM, farm yard manure. Okay, तो FYM at the time of sowing helps in prevention of the diseases. Okay, so students, the decreases plant should be uprooted and destroyed so that the excretion do not form of survive. Okay, so spray with carbendazim 50 wp at the rate 1 gram per liter of water at an interval of 15 days with the appearance of the symptoms. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट कंटेंट हमारा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट. वो था आपका डिजीज़ था, ये हमारा इंसेक्ट है. कौन कौन से इंसेक्ट इसमें है कॉमन, आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा एफिड. ओके, तो इसके नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं, कैसे कैसे दिखता है, फिर इसका कंट्रोल पे हम चर्चा करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स एफिड. ओके, तो nymphs and the adult are seen in large number of young plants, leaflets, stem and pods, young leaves of seedling become twisted. Excitation of the honeydew attract shooty mold. The adults are black and shiny up to 2 mm long, and some are winged. Nymphs are covered with the waxy coating that marks them gray and dull. ओके, इस कलर का दिखता है. सो फिर इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे स्टूडेंट्स, आइए हम ये देखते हैं. तो स्प्रे विद 5% क्योर्ड नीम एक्सट्रैक्ट ऑफ 2% नीम ऑयल एंड 3000 ppm. ओके, सो सेकेंड, स्प्रे विद डाइमेथाइड 30 EC 1.7 ml पर लीटर. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर्टेड पॉड बोरर. ओके, तो इसको हम स्टूडेंट देखते हैं ये क्या है, ये कैसे दिखता है. तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ डैमेज का क्या है, आइए देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, द लार्वा बेब्स द leaves, inflorescences and feed inside the flowers. Flower buds and pods, eggs are laid on or in the flowers. Okay, so students, young larvae feed inside the flower before moving to developing pod. When mid-size, a larva may consume 4 to 6 flowers before larva development is completed. Okay, so student, third to fifth insector larvae are capable for burrowing into the pods and feeding the developing grain. Seed in damaged pods are totally or partly eaten out by larvae. सो स्टूडेंट्स, इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? ठीक है, आइए
सॉरी कंट्रोल देखते हैं। स्टूडेंट्स स्प्रे वेसिलस स्प्रे वेसिलस Thuring insist 5 Wg at the rate 1.0 gram per liter of water. And for second, foliar spray of Profenofos 50 EC at the rate 2.0 ml per liter of water. And physical sucking of the infested plants over the vessels of oil and water or oily cloth help reduce the population. ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है पॉड बग। ठीक है, पॉड बग है, इसका देखते हैं नेचर ऑफ डैमेज और फिर इसका कंट्रोल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ डैमेज पॉड बग एडल्ट्स एंड नाइम्फेस डैमेज लीव्स फ्लावर बर्ड्स स्टेम एंड पॉट्स बाय सकिंग सेल सैप major damage in done to the green pod before the maturity of the crop. The attacked pods show the pale yellow patches. The grain in the pods become small in size, resulting in considerable yield losses. Okay, स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कंट्रोल हम कैसे करेंगे पॉड वर्क को। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल हम आपको बता दूं पहले, इस तरह ये दिखता है, ये ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, बट इस पर थोड़ा इस ग्रास हॉपर की लेग्स थोड़ी कम छोटी होती हैं, इसकी लेग्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। इस तरह का ये दिखता है स्टूडेंट्स। ओके सो स्टूडेंट्स इसको कंट्रोल हम करेंगे फिजिकली सकिंग ऑफ द इन्फेस्टेड प्लांट्स ओवर द वेसल्स ऑफ ऑयल एंड वाटर और ऑयली क्लॉथ हेल्प रिड्यूस द पॉपुलेशन। इससे पहले भी पॉइंट में मैंने आपको एक कंट्रोल बताया था। सो फिर इसमें स्प्रे मोनोक्राटोफोस 36 SL एट द रेट 1.0 ml पर लीटर वाटर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड एट पॉड फॉर्मेशन स्टेज के टाइम पे हम लोग इससे कंट्रोल करेंगे। स्टूडेंट्स फिर हमारा नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग स्टोरेज। हम लोग कैसे करेंगे इसको, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग स्टोरेज। ओके सो स्टूडेंट्स wood should be harvested. Wood means wood bean या black gram same चीज़। ओके स्टूडेंट्स wood should be harvested when 70 to 80% pods mature and most of the pods of turn black. So students over maturity may be resulting shattering harvested. Okay students harvested crops should be dried on threshing floor for few days and then threshed. ओके तो स्टूडेंट्स द क्लीन। ओके स्टूडेंट्स थ्रेसिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाई टेम्परिंग अंडर द फीट ऑन एंड बुलकोज। ओके तो स्टूडेंट द क्लीन शीट शुड बी सन ड्राइड फॉर 3 से 4 days टू ब्रिंग their moisture content at 8 से 10% at safely stored in appropriate bins. ओके स्टूडेंट्स इसको हम अच्छे से हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग करेंगे। इसमें हार्वेस्ट करते समय इसमें कितना % मॉइस्चर होना चाहिए, स्टोर करते समय 8 से 10% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए स्टोर करते समय। ठीक है ना, और इसको हम मतलब थ्रेसिंग के बाद 8 मतलब थोड़ा धूप में 3 से 4 दिन के लिए सुखा लेंगे हम लोग। ठीक है ना स्टूडेंट फिर हमारा आता है ईल्ड। ओके ईल्ड में उपज हमारी होती है, कितनी उपज हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट से एविल ईल्ड हमारी कितनी हुई है अप्रॉक्सीमेटली, आइए देखते हैं। एविल मैनेज्ड क्रॉप ऑफ उर्द मीन्स उर्द बिन ब्लैक ग्राम एक ही बात होता है। उर्द में भी प्रोड्यूस 12 से 15 क्विंटल ग्रेन्स पर हेक्टेयर। स्टूडेंट जो हमारी कल्टीवेशन है उर्द बीन का जो ईल्ड है तो कम से कम कॉमन है, कोई वैराइटल डिफरेंस नहीं है। कॉमन मीन्स कॉमन कोई भी उर्द बीन क्रॉप हो तो उसका जो उपज है जो उसकी ईल्ड है कितना है इसका 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसमें आ रहा है। ठीक है जनरली एक कल्टीवेशन क्रॉप में। ठीक है पर्टिकुलर अगर हम किसी वैराइटल डिफरेंस पे देखेंगे तो हो सकता है वैराइटल डिफरेंस अलग अलग वैरायटी का, किसी का 15 से 18 आएगा, किसी से 18 से 20 आएगा, किसी से मतलब 16 से 18 आएगा, तो वो वैराइटल डिफरेंट होता है। ठीक है इसका हम देखें कितना है 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके तो स्टूडेंट्स आइए फिर हम देखते हैं इसके
आउटलाइंस, क्या क्या इसके आउटलाइन, जैसे कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आउटलाइन जो है स्टूडेंट सबका सेम होगा, क्योंकि पार्ट हमारे डिफरेंट टाइप पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे डीप समर प्लॉइंग वंस इन 3 ईयर। ओके, सेकेंड सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर सोइंग। ओके, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट वैल्यू। ठीक है, एंड हमारा फिर नेक्स्ट है खरीफ सीजन सोइंग शुड बी डन बाई राइज एंड फॉरो मेथड। ओके, फिर नेक्स्ट है येलो मोज़ेक रेजिस्टेंट टोलरेट वैरायटी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे IPU 94-1 उल्ट्रा, शेखर 3, KU 309, उज्जला OVJ 17, VVM ETC अदर। ओके, एंड चूज एज पर सुटेलेबिलिटी ऑफ रीजन। ठीक है, रीजन के अकॉर्डिंग हमको जो सुटेबल लगे वो हमको यूज करना है। हमारा नेक्स्ट है वीट कंट्रोल शुड बी डन एट राइट टाइम। सही समय पर हमको वीट कंट्रोल करना है। पहले हम लोग डिफरेंट टाइप वीट कंट्रोल होते हैं, दे आर 4 टाइप: कल्चरल, मैकेनिकल, मेथड एंड बायोलॉजिकल। ओके, एंड नेक्स्ट एडोप्टेड एजुकेटेड अप्रोच फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा 4 टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्लेसेस कंटेंट टू डिस्ट्रिक्ट KVK मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र एंड नियरेस्ट KVK या किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाके हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा टू एबल टू बेनिफिट फ्रॉम सेंट्रली एंड स्टेट गवर्नमेंट रनिंग स्कीम फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एम्प्लॉइंग फर्टिलाइजर, मैक्रोन्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड, इरिगेशन इक्विपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ETC। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक फिनिश, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। पार्ट 4 के साथ ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट था, काफ़ी अच्छा पार्ट था कल्टीवेशन उर्दविन क्रॉप का। इसमें से कई सारे क्वेश्चन फटाब होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और जब मैं आपको वेबिनार लूँगा तो क्वेश्चन भी फटाब करूँगा, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, थैंक यू।